ایسی بے بسی، ایسی حسرت تھی ان الفاظ میں کہ میں تڑپ کر رہ گیا۔ فریدہ کی تو آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ نہیں ماں جی، ہمارے ہاں تو یہ تصور ہی نہیں ہے کہ انسان کسی مسئلے میں مکمل طور پر مایوس ہو جائے۔ بیٹی بس اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور سب کچھ اسی پر چھوڑ دیا ہے۔ انسان کی حیثیت سے جو باتیں نگاہوں کے سامنے ہیں انہیں کہنا ہی پڑتا ہے۔ خیر، آپ لوگ تفتیش کے لیے آئے ہیں، جو کچھ مجھے معلوم ہے بتا دوں گی آپ کو، پوچھئے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے ماں جی کہ ایک ماں کی حیثیت سے تو آپ کا بیٹا یقیناً آپ کی نگاہوں میں دنیا کا سب سے سچا اور سب سے اچھا بیٹا ہوگا، لیکن اگر آپ کو آپ کے ایمان کا واسطہ دیا جائے اور یہ پوچھا جائے کہ کیا حسن اقبال کی فطرت میں جو رخ پوشیدہ تھا تو آپ اس کا انکشاف ضرور کر سکیں گی، بشرطے کہ حق و انصاف کی بات کریں۔ میرا بیٹا پہلے بھی مجرم نہیں تھا، اب بھی مجرم نہیں ہے۔ وہ کسی کے لیے زندگی دینا تو جانتا ہے، کسی کی زندگی لینا اس کے لیے ایک ناممکن عمل ہے۔ کیا پولیس یہاں آئی تھی؟ ہاں، تلاشی وغیرہ لی اس نے۔ ہاں، پورے گھر کو تتر بتر کر کے رکھ دیا، انتہائی سخت سلوک کیا ہمارے ساتھ۔ اقبال احمد صاحب ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ان سے پوچھ گچھ کی تو انہوں نے بے تکی باتیں کی، جس کے نتیجے میں ایک پولیس آفیسر نے ان کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا اور لاتوں سے ان کی خاطر مدارت کی۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے آئی، ورنہ وہ شاید انہیں مار مار کر زخمی کر دیتے۔ اس گھر کی تلاشی لی، ہاں، جو پسند آیا اٹھا کر لے گئے۔ معمر عورت نے جواب دیا۔ ظاہر ہے کچھ نہیں چھوڑا ہوگا انہوں نے۔ اچھا چھوڑیے، اب یہ بتائیے کہ آپ کے خیال میں یہ سب کچھ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ سازشیں ان لوگوں کے لیے ہوتی ہیں جن کے خلاف سازشیں کر کے کچھ مل جائے۔ حسن اقبال کو 4 سال کی سزا ہوئی تھی۔ ہاں، وہ ایک ٹرانسپورٹ کمپنی میں ملازمت کرتا تھا اور ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک نے اس پر غبن کا الزام لگا کر اسے گرفتار کرایا تھا۔ بعد میں وہ ضمانت پر چھوٹ آیا اور اس نے ٹرانسپورٹ کمپنی کے مالک کو یہ بتایا کہ وہ مجرم نہیں ہے، تو جیسے جمیل شاہ اس پر بگڑ گیا، شاید اس نے مارا پیٹا اور اس کے بعد اس کی ضمانت منسوخ کرا دی اور مار پیٹ کے الزام میں اسے انتہائی سختیوں کا سامنا کرنا پڑا اور انہی دونوں جرائم کے نتیجے میں اسے 4 سال کی سزا ہوئی۔ ابھی 10 دن پہلے ہی چھوٹ کر آیا تھا۔ جس شام کو عورت کا قتل ہوا اس نے آپ کو کچھ بتایا تھا؟ نوکری کے لیے کوشش کر رہا تھا، اکثر درد بھرے لہجے میں کہتا تھا کہ اب اسے ایک ڈگری اور مل گئی ہے، یعنی قید کی ڈگری۔ پہلے سے جو سندیں اس کے پاس تھیں وہ ویسے ہی کسی کام نہیں آ رہی تھی، لیکن اب نئی ڈگری مل جانے کے بعد ملازمت کا مسئلہ اس کے لیے اور مشکل ہو گیا ہے۔ تقدیر آزما رہی تھی، گھر کے حالات سے بہت پریشان تھا اور نہ جانے کہاں کہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ اس سلسلے میں اس دن بھی کہیں گیا تھا، جس کے بعد سے واپس نہیں آیا اور بعد میں ہمیں یہ اطلاع مل گئی۔ نفیس احمد آپ کا کون ہے؟ نفیس احمد؟ ہاں، نفیس احمد نامی کسی شخص کو جانتی ہیں آپ؟ ایک تو میرے دور کے رشتہ دار کا بیٹا ہے، بڑا اچھا لڑکا ہے۔ کیوں اس کا نام کیوں پوچھا آپ نے؟ بس ایسے ہی۔ فریدہ نے سامنے سے گزرتی ہوئی ایک لڑکی کو دیکھا اور اٹھتی ہوئی بولی، میں ذرا آپ کے فلیٹ کا جائزہ لے لوں؟ ماں جی، میں آپ کو ماں جی کہہ کر مخاطب کر رہا ہوں۔ میں نے ایک بھی بات آپ سے ایسی نہیں کی جو پولیس والوں جیسی ہو۔ آپ کو تھوڑا سا اطمینان دلانا چاہتا ہوں ایک سلسلے میں، وہ یہ کہ اگر آپ کا بیٹا بے گناہ ہے تو پورا اعتماد رکھیے خدا کی ذات پر کہ وہ بالآخر آپ تک پہنچ جائے گا۔ میں اس سلسلے میں بھرپور کوشش کروں گا۔ آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کسی بھی طور بد دل نہ ہوں۔ آپ اپنا ایک بیٹا کہتی ہیں، میرا نام جہانگیر جمال ہے۔ آپ مجھے اپنا دوسرا بیٹا تصور کر سکتی ہیں۔ ماں جی، مجھے آپ سے کچھ لالچ نہیں ہے، لیکن سب سے بڑا لالچ یہ ہے کہ ایک بے قصور بیٹے کی ماں کو ہر طرح کا اطمینان دلاؤں اور اس کی دعائیں حاصل کروں۔ آپ بالکل اطمینان رکھیں، اگر حسن اقبال بالکل بے گناہ ثابت ہوا تو ایک دن میں اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں آؤں گا اور آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ معمر عورت کی آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی، وہ روتی رہی، پھر اس نے گردن اٹھا کر کہا، یہ دلاسا تم نے ہی دیا ہے بیٹے، خدا تمہیں اس کا اجر عطا کرے۔ فریدہ تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئی، چاروں لڑکیاں اس کے ساتھ تھیں۔ فریدہ نے کہا، بھائی جہانگیر جمال شاہ صاحب، یہ تو آپ نے میرا تعارف ایک بہت اچھے گھرانے سے کرا دیا، یہ چاروں لڑکیاں میری دوست بن گئیں۔ ماں جی، آپ کو یہ سن کر خوشی ہوگی کہ اب آپ کے گھرانے میں ایک اور گھر کا اضافہ ہو گیا ہے، وہ ہم لوگ ہیں۔ میں آپ کے ہاں آتی رہوں گی، اس کے بعد جب حسن اقبال رہا ہو کر آ جائیں گے تو پھر ہم آپ کو اپنے گھر بلائیں گے۔ یہ چاروں لڑکیاں میری دوست بن گئی ہیں اور اب میں بھی آپ کی بیٹی ہوں۔ نہیں محترمہ، آپ ان کی بیٹی نہیں بہو ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دوسرا بیٹا میں بن گیا ہوں۔ بھائی میرا رشتہ کیوں چھین رہے ہیں آپ؟ تم دونوں میاں بیوی ہو؟ معمر عورت نے کہا۔ ہاں ماں جی، میں نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ دونوں پولیس میں ہو؟ یہی سمجھ لیجیے آپ، تفصیل پھر دوسری ملاقات میں آپ کو بتائیں گے۔ اگر میں بہو ہوں تو یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں جہانگیر جمال شاہ صاحب کہ آپ اپنے گھر والوں کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔
हसन इकबाल बेचारे 4 साल तक कैद रहे और इनके वालिद इकबाल अहमद साहिब ज़हनी तौर पर दुरुस्त नहीं है। इस घर के हालात कैसे चल रहे हैं आपको इल्म है? माँ जी, अब मुझे आपकी बहू बना लिया गया है तो मैं ये नहीं सुनूंगी कि लोग कहें कि अपनी सास का कोई ख्याल नहीं रखा, मैंने अपनी नंदों की कोई जरूरत पूरी नहीं की। ये एक हकीर सी रकम मेरे पास मौजूद है, बराए करम इसे अपने इस्तेमाल में लाइए। मैं बहुत जल्द आपको और भी थोड़े से पैसे भिजवाऊंगी। फरीदा ने अपने पर्स से नोटों की अच्छी खासी रकम निकाल कर मुअम्मर औरत की तरफ बढ़ा दी और मुअम्मर खातून यकदम पीछे हट गईं। नहीं बच्चों, तुम लोग जानते हो कि हमारा तुमसे खून का कोई रिश्ता नहीं है। अगर ये रकम मैंने कबूल कर ली तो ये बीक में शुमार होगी। मैं बीक नहीं लेती। इन बच्चियों से पूछो, हम लोग जैसे भी बन पड़ता है मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहे हैं। हमारी जमीर पर ये दाग मत लगाओ। मैंने किसी कदर सर्द लहजे में कहा, ठीक है माँ जी, हमारा आपका वाकई खून का कोई रिश्ता नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि कोई भी रिश्ता नहीं है। ठीक है फरीदा, रहने दे। ये तो एक कोशिश थी इन लोगों से मोहब्बत जाहिर करने की। इन्होंने हमें कबूल नहीं किया है, मजबूर तो नहीं कर सकते ना। अरे बुरा मान गए। नहीं माँ जी, आपने सच कहा है और सच का बुरा नहीं मानना चाहिए। पता नहीं लोग उल्टे सीधे रिश्ते कायम कर लेते हैं। मेरी तो ये पहली ही कोशिश थी। ये कोई ऐसा मौजू नहीं था जिस पर हम लोग इतनी बातें करते। असल मौजू जो था वो तो हसन इकबाल ही का था। बहरहाल रहने दीजिए। लाओ बेटी लाओ। मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि किसी का दिल तोड़ूं। और फिर सच्ची बात यह है कि जरूरत तो है, इससे इनकार करके मजाक नहीं करना चाहती, अपने आप से भी और तुमसे भी। आप इन्हें बहालते मजबूरी अपने पास न रखें। इंसान ही इंसान के काम आता है। अगर ऐसा ना हो तो सब के सब बेबसी का शिकार हो जाएं। बमुश्किल तमाम हमने गयूर औरत को अपनी पेश की हुई रकम कबूल करने पर आमादा किया और इसके बाद हम वहाँ से चल पड़े। मैं कार ड्राइव कर रहा था। फरीदा कहने लगी, जहांगीर, बाज़ औक़ात यूं महसूस होता है जैसे जिस गम को हमने अपने लिए शदीद तर समझा था वो दूसरों के गमों के सामने कुछ भी नहीं है। बड़े गमज़दा लोग आबाद हैं इस दुनिया में, कैसे दुख की बात है। और फिर इनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इंसान एक दूसरे से बहुत दूर हो चुका है। लोग कहते हैं कि पहले ऐसा नहीं था। वैसे जहांगीर, जरा ये तस्वीर देखो। फरीदा ने एक तस्वीर निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई। मैंने एक हाथ से स्टीयरिंग संभाल कर दूसरे हाथ में तस्वीर लेकर उस पर एक नजर डाली। सामने रास्ता सुनसान था। मैं तस्वीर पर देखकर चौंक पड़ा। तस्वीर बेशक पुरानी थी, लेकिन मिसेस जमाल को पहचान लेना मेरे लिए मुश्किल साबित नहीं हुआ। हालांकि इस तकरीब में भी मैंने उन्हें गौर से नहीं देखा था, लेकिन उनकी लाश पर एक नजर जरूर डाली थी। और चूंकि ये मेरा पेशा बन चुका था, इसलिए इसे पहचान लेना मेरे लिए मुश्किल साबित ना हुआ। मैंने चौंक कर कहा, यह किसकी तस्वीर है? सुमेरा है इस लड़की का नाम, और यही लड़की कत्ल हुई है मिसेस जमाल की हैसियत से। ये तस्वीर कहाँ से आई तुम्हारे पास? मैंने हैरान लहजे में पूछा। मैं काफी हैरान हो गया था, लेकिन मैंने फौरन ही सब कुछ बताने की जिद नहीं की। अलबत्ता तजस्सुस मेरे दिल में जरूर बेदार हो गया था। ये तस्वीर फरीदा के पास कहाँ से आई? बिल आखिर हम घर पहुँच गए। घर के मामलात में कोई ऐसी बात नहीं हुआ करती थी जो काबिल तज़किरा हो। सब लोगों ने मेरे इस घर को संभाल रखा था और हम सारी उलझनों से बचे हुए थे। फरीदा के साथ मैं अपने घर में आ गया और मैंने सबसे पहले वही सवाल किया, बैठो और बताओ ये तस्वीर तुम्हारे पास कहाँ से आई? मैंने सवाल किया। आरिफा ने दी है मुझे। आरिफा? हाँ, हसन इकबाल की मंजली बहन है। ये हसन इकबाल की क्लास फेलो थी और हसन इकबाल इससे मोहब्बत करता था, और यकीनन ये भी। ओफो, मैंने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। इसका मकसद है कि कहानी कुछ बन रही है। हाँ, यकीनन कहानी बन रही है। आरिफा ने मुझे तफसीलात बताई थी और कहा था कि ये तस्वीर अक्सर हसन इकबाल के पास नजर आती थी और वो इसे बैठकर घंटों देखता रहता था। ये जमाना तालिब इल्मी की तस्वीर है। और बाद में हसन इकबाल ने इसे बताया था कि यानी अपनी बहन को कि समीरा की शादी हो गई है एक प्रोफेसर के साथ, और प्रोफेसर का नाम मसूद जमाली है। गुड, फिर कुछ नहीं। उसने यही बताया था मुझे कि इसी औरत के कत्ल के इल्जाम में हसन इकबाल को गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये मुमकिन नहीं था कि जिस औरत की हसन इकबाल ने जिंदगी भर पूजा की वो उसे अपने हाथों से कत्ल कर दे। मैं सोचों में डूब गया। बहुत देर तक गौर करता रहा और इसके बाद मुझे वाकई इस बात का यकीन हो गया कि ये केस मेरे शयान शान है। इसके लिए यकीनी तौर पर भरपूर कोशिशें करनी है। बहुत से उलझे धागे सामने आ गए थे और इन दागों को सुलझाना बेहद जरूरी हो गया था। चुनाचे अब इस सिलसिले में कोई मौसर मंसूबाबंदी करनी थी। फरीदा को इस सारी कहानी में बहुत लुत्फ आया था। कहने लगी, और जनाबे अली, कसूर मेरा नहीं है। आपने मुझे जबरदस्ती जासूसी के चक्कर में डाल दिया है। लड़कियां वाकई खुश इखलाक हैं। माली परेशानियों ने उन पर ओस डाल दी है। मैं अगर उनसे मिलती रहूं तो कोई हर्ज तो नहीं है जहांगीर? बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं तो ये चाहता हूं कि तुम अपने लिए इस किस्म की मशागल कायम कर लो, ताकि अगर कभी मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़े
तो तुम्हें मेरी कमी महसूस ना हो। फरीदा ने शर्माई हुई निगाहों से मुझे देखा और फिर आहिस्ता से बोली, तुम्हारी कमी किस मशागल में पूरी हो सकती है? मैंने मुस्कुराते हुए फरीदा का हाथ पकड़ा और उसे अपने नजदीक घसीट लिया। बहरहाल ये मशगला भी मेरे नजदीक काफी दिलचस्प था। बाद में मैंने इसके बारे में सोचा और अजीब से एहसासात मेरे दिल में पैदा हो गए। मुल्की पैमाने पर जो कुछ हो रहा था वो तो हो ही रहा था, लेकिन अंदरूनी हालात भी बाज दफा ऐसे हो जाते हैं कि अगर इनके सिलसिले में अपना फर्ज पूरा ना किया जाए तो एक जुर्म का सा एहसास होता है। और जहांगीर जमाल शाह तो शायद अब हसास हो गया था। जिसकी आंखों में रच जाने वाला नीला रंग उसे दीवानगी की जानिब माइल कर देता था। जिंदगी में एक ठहराव जो पैदा हो गया था उसने दुनिया से रोशनास कराया था और ये एहसास दिलाया था कि दर्द से सिसकते हुए लोगों को अगर उनके दर्द से निजात दिला दी जाए तो उसे सुकून मिलता है। इसका कोई सानी नहीं होता। चुनाचे बेहतर ये होगा कि इन मामलात में भी पूरी तरह मुदाखलत की जाए। रास्ते की रुकावटों को अच्छी तरह जानता था। सच्ची बात तो ये है कि इब्तिदा इन्हीं हालात से की थी। पहले खुद मुजरिम था और घर वालों से सरकशी करके जराइम करता था, लेकिन अब मुजरिमों की सरकूबी को जी चाहता था। और अब अपनी इन सलाहियतों को अगर मैं भी इस्तेमाल ना करता तो असल जुर्म ये होता। मैंने सबसे पहले हसन इकबाल से मुलाकात करने के बारे में सोचा। आफ्ताब कमाल को टेलीफोन किया और उसने टेलीफोन रिसीव कर लिया। हेलो चीफ। हेलो आफ्ताब, कहो क्या हो रहा है? चीफ, सब कुछ पुरसुकून है। हमने जो टीम बनाई है उसे तरबियत दे रहा हूँ। बेहतरीन अफराद आपके सामने पेश करूंगा। बाकी मामलात पुरसुकून हैं और कोई ऐसी अहम बात नहीं है। हसन इकबाल को कहाँ रखा गया है? CIA सेंटर में चीफ। इंचार्ज फारूक हसन। ठीक, बस यही मालूम करना था। आप पूरी तरह इसकी तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं चीफ? हाँ भाई, काम करना है। मेरी जरूरत पेश आई तो बता दूंगा। बस तुम भी इन मामलात से मुतालिक रहो और अपने तौर पर मालूमात हासिल करते रहो। ओके चीफ। और कोई हुक्म? तुम्हारा मशगला क्या है? मेरे मशागल तो बहुत मुख्तलिफ हुआ करते हैं चीफ। मसलन मेरा दिलचस्प मशगला तो यही है कि मैं दुनिया से वाकिफ रहूं। कहाँ क्या हो रहा है ये मेरे इल्म में आना जरूरी है। मैंने इसके लिए एक मखसूस तरीक़ाकार मुंतखब किया है और इस पर अमल करने से मुझे बहुत सी कामयाबियां हासिल हो रही हैं। मुझे यकीन है आफ्ताब कमाल कि अगर तुम्हारे बारे में तहकीक की जाए तो तुम इंसान से ज्यादा कंप्यूटर साबित होगे। नहीं चीफ, कंप्यूटर भी इंसान ही की ईजाद है। कंप्यूटर इंसान के सामने क्या हकीकत रखता है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ। दूसरे दिन 11:30 बजे मैं घर से निकल आया। कार में बैठकर CIA सेंटर चल पड़ा। दिलचस्प मामलात थे। मुझे इन रुकावटों का एहसास था जो मुझे पेश आ सकती थी, लेकिन इसी में तो काम करने का मजा आता है। सीधे साधे काम बासानी हो ही जाते हैं। अभी मैंने सिर्फ एक हिस्सा छुआ था, यानी हसन इकबाल का घर। इसके अहले खाना से अच्छी खासी मालूमात हासिल हुई थी, यानी ये कि मिसिस समीरा जमाली, जिसे एक निगाह देखने के बाद मैंने ये अंदाजा लगा लिया था कि वो मसूद जमाली की उम्र से आधी उम्र के करीब होगी। हसन इकबाल की क्लास फेलो थी और दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और हसन इकबाल समीरा का कातिल करार दिया गया था। CIA सेंटर में मेरे शनासा थे, लेकिन वो सब मुझे DIG तैमूर जमाल शाह साहिब के हवाले से जानते थे। मैंने खुसूसी तौर पर SP फारूक हसन के बारे में मालूमात हासिल की। उनका ताल्लुक CIA ही से था। वो अपने दफ्तर में मौजूद थे। मुझे देखा, शायद वो मुझे पहचानते थे, लेकिन कोई खास तवज्जो नहीं दी थी उन्होंने। मैंने सलाम करके उनके सामने बैठते हुए कहा, मेरा नाम जहांगीर जमाल शाह है। मैं जानता हूँ आपको। आपके पास एक जरूरत से हाजिर हुआ हूँ। कहिए। उस दिन एक तकरीब में आप मेहमान की हैसियत से शरीक थे जब आपने हसन इकबाल नामी एक शख्स को गिरफ्तार किया था। जी हाँ, मुझे इल्म है उस दिन आप भी वहाँ मौजूद थे। क्या हसन इकबाल से आपकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है? क्या उसने इकबाल जुर्म कर लिया? ना भी करे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम यही कोशिश कर रहे हैं कि वो जुर्म का इकरार कर ले। अभी तक आपने उसे अदालत में क्यों पेश नहीं किया? आपके इस सवाल का मतलब जानना चाहता हूँ। बस यूँ समझ लीजिए कि हसन इकबाल के सिलसिले में कुछ कार्रवाइयाँ कर रहा हूँ। किस हैसियत से? उसके दोस्त की हैसियत से। मैंने जवाब दिया, दोस्ती कानून के रास्ते में ना आए मिस्टर जहांगीर जमाल शाह, ये मेरा दोस्ताना मशवरा है आपको। मैं मुस्कुराने लगा। मैंने कहा, नहीं, मैं खुद भी एक कानून दां का बेटा हूँ, बल्कि कानून के मुहाफिज का बेटा हूँ। भला कानून के खिलाफ कोई अमल कैसे कर सकता हूँ? उसूली तौर पर तो आप मुझसे इसके बारे में सवालात भी नहीं कर सकते। ताहम चूंकि मुझे इस बात का इल्म है कि आप DIG जमाल साहिब के बेटे हैं, इसलिए मैं आपसे थोड़ा बहुत ताउन कर रहा हूँ। इससे आपका क्या ताल्लुक है? मैंने कहा ना, एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि दोस्ताना ताल्लुक है, मगर ये चीज कानून की जरूरत पूरी नहीं करती। अगर आप वकील होते और इसके वकील की हैसियत से ये सवाल करते तो मैं आपको जवाब दे सकता था। SP साहिब, मैं उससे मिलना चाहता हूँ और आपसे दोस्ताना तौर पर इसलिए दरखास्त करता हूँ कि मेरी इससे मुलाकात करा दी जाए।
माफ कीजिएगा, मैं जिम्मेदारियों के सिलसिले में दोस्ताना निभाने का कायल नहीं हूँ। गोया मेरी उससे मुलाकात नहीं हो सकती। जी हाँ, मेरे ख्याल में ये मुनासिब नहीं है। अभी वो जेरे तफ्तीश है। हम कोई ऐसा अमल नहीं चाहते जिससे तफ्तीश में रुकावट पड़े। आप ये कहते हैं कि उसने इकबाल जुर्म नहीं किया। जी हाँ, लेकिन हम इस बात को कोई अहमियत नहीं देते। बराए करम मेरी इससे मुलाकात करा दे, वरना मुझे दूसरे जराए इख्तियार करना पड़ेंगे। आप हर जरिया इख्तियार कर सकते हैं और मैं आपको नाकाम बनाने के लिए कोशिश करूंगा। मेरा आपका कोई इख्तलाफ तो नहीं है एसपी साहब, हो भी नहीं सकता। DIG का बेटा होने का मतलब ये नहीं है कि आप जहाँ चाहें अपने असर रसूख को इस्तेमाल करें। मैं माजरत खा हूँ और अब आप जा सकते हैं, क्योंकि मैं आपको इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। फारूक हसन काफी मगरूर मालूम होता था। मैंने हंसते हुए कहा, फारूक साहिब, इख्तलाफ आपने शुरू किया है, आप ही इस सिलसिले में मुझसे माफी मांगेंगे और आप यकीन कीजिए मैं माफ कर दूंगा आपको। इस वक्त चलता हूँ। एक मिनट, अगर आप ये समझते हैं कि इन अल्फाज को अदा करने के बाद आप बआसानी यहाँ से जा रहे हैं, तो इस गलत फहमी को इसलिए दिल से निकाल दीजिए कि मैं कानून के मामले में किसी का असर कबूल नहीं करता। क्योंकि आपने पहली बार मेरे सामने ये गुस्ताखाना अल्फाज अदा किए हैं, इसलिए आपको इखलाकन जाने दे रहा हूँ। आइंदा जरा इस बारे में एहतियात कीजिएगा। मैंने रुक कर फारूक हसन को देखा और सख्त लहजे में बोला, इब्तदा आपने की है, हो सकता है इसके बाद मैं आपके लिए जहन से माफी का तस्वुर खत्म कर दूं और इन अल्फाज का आपको खमियाजा भुगतना होगा। जाइए, मैंने आपसे कहा है कि आप जा सकते हैं, या उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि मैं इरादा तब्दील कर दूं। फारूक हसन बोला और मैं तेज कदमों से उसके दफ्तर से बाहर निकल आया। ये होते हैं वो लोग जो दुश्मनियां खरीदते हैं। बहरहाल DIG तैमूर जमाल साहब इस सिलसिले में नाकाम रहे थे, फिर ये SP साहब क्या हैसियत रखते हैं। मैं कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहा था, लेकिन अगर एक शख्स की दादे फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था और किसी की उससे जाती दुश्मनी भी नहीं थी, तो कम से कम इस ताउन में कोई हर्ज नहीं था जो मैंने SP फारूक हसन से मांगा था। ऐसे अफसरों को थोड़ा सा सबक मिलना जरूरी होता है। मैं वहाँ से अपने दफ्तर की जानिब चल पड़ा। दिमाग वाकई गर्म हो गया था। अब जरा ये सोचना था कि इस सिलसिले में सही कदम क्या हो सकता है। दफ्तर में उस वक्त मेरी आमद को सनसनी की निगाहों से देखा गया। आफताब कमाल वैसे भी बाकमाल आदमी था। उसने दफ्तर को बहुत शानदार बना रखा था। कुछ देर के बाद वो मेरे पास पहुंच गया और मैंने उससे तमाम खैरियतें दरियाफ्त की। बिल्कुल ठीक है चीफ, कोई इतला नहीं की आपने आने की। हाँ, बस यूं समझ लो गुस्से से खोलता हुआ आया हूँ। अरे खैरियत। और मैंने आफताब कमाल को SP फारूक हसन के बारे में तफसीलात बताई। आफताब कमाल अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा था। फिर वो बोला, खैर चीफ, ये तो कोई मुश्किल मसला नहीं है, लेकिन एक बात इस वक्त जरा बाइसे उलझन बन गई है। क्या? शहबाज अहमद साहिब आज ही बैरून मुल्क रवाना हुए हैं और उनका ये दौरा तकरीबन 20 दिन का है। कहीं कोई मुश्किल न पेश आ जाए। मुश्किल तो वाकई है, क्योंकि उन्हें ही इस सिलसिले में कार्रवाई करनी थी। वैसे मैं इस इख्तियारनामे से भी काम ले सकता हूँ जो वजारत दाखिला ने शहबाज अहमद साहिब के कहने से मुझे जारी किया है, लेकिन इस मसले में इसका सामने लाना मुनासिब नहीं है। क्या किया जाए? चीफ, अगर आप इस सिलसिले में ब्रिगेडियर जमाल साहिब से राब्ता कायम करें तो कैसा रहेगा? मैंने पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर कहा, ब्रिगेडियर जमाल साहिब का कोई प्राइवेट नंबर है तुम्हारे पास? जी हाँ। ऐसी बातों के सिलसिले में आप मुझसे पूछा ना करें, क्योंकि आपका मुझसे राब्ता रहा है, इसलिए मैंने उनके बारे में जो तफसीलात जरूरी हो सकती थी हासिल कर ली हैं। ब्रिगेडियर जमाल के प्राइवेट नंबरों पर उनसे राब्ते की कोशिश की गई तो फौरन ही उनसे मुलाकात हो गई। मैंने जब अपना तारुफ कराया तो ब्रिगेडियर साहिब खुश इखलाकी से बोले, ओहो हैरत अंगेज आदमी, कहो भाई खैरियत। इत्तफाक की बात है कि मैं इस वक्त तुम्हें मिल गया, वरना कहीं जा रहा था। जब हम मुल्की मफाद के बारे में सोचते हैं सर, तो हमारे जहन में सिर्फ ये नहीं होता कि मुजरिम बैरून मुल्क से आया है या अंदरूने मुल्क इसकी तख्लीक हुई है। वो कोई भी हो, मुल्क में रहने वाले किसी मासूम से शहरी को भी उसके हाथों से नुकसान पहुंच रहा हो तो क्या कानून की आंखें नहीं खुल जानी चाहिए, या नुकसान पहुंचाने वाले को नजरअंदाज कर देना जरूरी है एक लम्हे के लिए नहीं? तो फिर कानून को इस तरह पाबंद क्यों कर दिया गया है कि फलां शख्स ये काम कर सकता है और फलां शख्स वो काम कर सकता है? कोई खास बात हुई है? जी हाँ, मैं पुलिस के मामलात में मुदाखलत करना चाहता हूँ और इसके लिए हो सकता है मुझे DIG की सतह तक पहुँचना पड़े। अच्छा, तो मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ इस सिलसिले में? जो कुछ मैं चाहता हूँ महकमा पुलिस से इसके लिए इख्तियारात फराहम करा दीजिएगा। जरा ऐसा मसला है कि सोच कर कदम उठाना पड़ेगा। सोचना सिर्फ ये है कि कानून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक फौजी अफसर होने की वजह से मैं सिविल मामलात में कहाँ तक इख्तियारात हासिल कर सकता हूँ। ओहो अच्छा भाई, एक काम करो, किस नंबर पर हो? इस वक्त मुझे वो नंबर बता दो। मैंने ब्रिगेडियर जमाल को अपने दफ्तर का नंबर लिखवा दिया। वो बोले, सिर्फ 15 मिनट इंतजार करना होगा या 20 मिनट हो सकते हैं, इसके बाद मैं तुम्हें फोन करूंगा।
بہت بہتر۔ دراصل ایک خیال آ گیا تھا فوراً ذہن میں، بات ذرا تفصیل طلب ہے اس لیے بتاؤں گا نہیں۔ بس یوں سمجھ لو کہ ایک بہت بڑی شخصیت نے جب مجھ سے اس بارے میں سوال کیے، میرا مطلب ہے جو کارنامہ تم نے پچھلے دنوں سر انجام دیا ہے، تو میں نے اسے تمہارا نام بتایا، بہت محبت کا اظہار کیا اور یہ بھی کہا کہ ایسے شخص کو ملکی پیمانے پر بہترین مراد ملنی چاہیے۔ میں اسی موقع سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اگر وہاں سے کام ہو گیا تو یوں سمجھ لو کہ کوئی مشکل ہی نہیں رہے گی۔ بہت شکریہ، شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو کہ شہباز احمد صاحب ملک سے باہر ہیں، ورنہ آپ کو زحمت نہ دی جاتی۔